So in any function or any signal, we have a dependent and independent variable. Independent variables are plotted on the x-axis, and dependent variable, which is generally amplitude or magnitude, is plotted on the x-axis. So we are going to discuss the operation of the independent variable. We have already done this article in theory classes where we have discussed about the various operations that can be carried over the independent variable, like time shifting, time scaling, and time inversion. So you may get numericals where you have to perform either one of these three operations, or it may also be possible you have to do the combined operation where more than one operation needed to be performed over the given signal. So today we will discuss these problems, that is where we have to do the individual operation over the independent variable and then combined operation also. So this is a waveform which is given in the numerical number 1. A continuous signal x of t is given to you. You have to find first xt plus 2, which is a single operation over the independent variable, and it is a time shifting operation. After performing xt plus 2, then in second part, b part, you have to find x minus t2 plus 2, and in third part you have to find x 4 minus t by 2. So आप सब लोग जो है वो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं. आप 15-20 मिनट का टाइम ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद फिर हम इसका सोल्यूशन जो है डिस्कस करेंगे. ठीक है, और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी बोलूंगा कि जो सोल्यूशन है वो आप दिखाओ कि कैसे आपने सॉल्व किया है. ठीक है, तो उसके अराउंड डिस्कशन हो जाएगा कि कैसे क्या उसमें वो बिल्कुल ठीक सोल्यूशन है या उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं. तो ये न्यूमेरिकल है, इसमें सिग्नल एक्स ऑफ टी आपको दे रखा हुआ है. इन पार्ट ए यू हैव टू फाइंड एक्स टी प्लस 2, in part B you have to find x minus t2 plus 2, and x in part C you have to perform x4 minus t by 2. Right, so you can start with the part A, which is a individual operation over the independent variable, that is a time shifting operation, and second is x minus twice of t plus 2. It is a combined operation. It involves shifting as well as scaling, and there is inversion also. In third part, again, we have scaling is there, shifting is also there, and inversion is also there. Right. So remember, as discussed in the theory class, when you are doing combined operation, we give shifting the first priority, and after that you can apply either time inversion, or you can also apply scaling first. Right. But the first priority has to be given to the shifting operation. Right. So जब भी आप पार्ट बी और पार्ट सी करने लगोगे तो उसमें सबसे पहले शिफ्टिंग ऑपरेशन ही करना है. उसके बाद आप स्केलिंग या इन्वर्जन में से कोई भी पहले अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो. यू विल गेट 15 minutes to complete the solution. So after that we will discuss the different ways through which we can uh, perform the solution of this numerical problem. So if you want to ask anything related to the numerical problem given to you, then you can ask. Otherwise, you can start solving this numerical problem.
सो आपने सॉल्व करके देखा था? रोहन सिंह 92। यस सर, पहले दो, मतलब हाँ पहले दो हो गए थे। पहले दो हो गए, दिखाओ कैसे किए, स्क्रीन शेयर। हाँ एक मिनट सर। तो विजिबल है सर? अभी तो कुछ विजिबल नहीं है, अभी लाइट ट्यूबलाइट दिख रही है। अरे यार वो दूसरा कैमरा सही तो। अब क्या, अब कुछ दिखाई दे रहा है? सर ये तो सर पहला वाला है सर, जिसमें बस 2 यूनिट शिफ्ट करना था लेफ्ट में। लेफ्ट को, ठीक है। हाँ। और सर दूसरा, फिर ये सर ये आपने वैल्यू उसके बाद, सब्स्टिट्यूट करके किया है सभी में, पार्ट बी करने नहीं, के लिए? हाँ सर वो उसमें स्केलिंग भी करनी थी ना, तो स्केलिंग में सब्स्टिट्यूट करके किया है। ठीक है ठीक है, क्या और फिर वेवफॉर्म दिखाना कैसी आई है? वेव फॉर्म सर इसका ये ऐसा बन रहा है सर। हाँ सही बनाया मतलब है। हाँ। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से? हाँ। -0.5 से? हाँ सर। -0.5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी सर तीसरा वाला मैं कर रहा, अभी चालू नहीं किया। ठीक है, करो आप साथ में, तो तीसरे वाला भी करो। संचित आपने किया है? संचित सैनी 101। यस सर, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर रहा हूँ। फर्स्ट दिखाओ कैसे किया। यस सर। संचित आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे या फिर कैमरा ऑन करके? क्योंकि अगर स्क्रीन शेयर करके करना है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ अपनी तरफ से। नहीं सर, मैं ऐसे दिखा दूंगा, कैमरा ऑन करके स्क्रीन शेयर नहीं हो ठीक पाएगा। ठीक। 2 मिनट सर। हाँ जी। सर दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। 2 मिनट सर, ऐसे ही सर, ये है सर। सर 2 यूनिट्स हो गया शिफ्ट ना लेफ्ट को। -4 से स्टार्ट किया आपने, है ना? और यस सर। उसको 1 पे एंड पे किया, ठीक है, ठीक बना। ठीक है, ओके, थैंक यू संचित। थैंक सो यू सर। और अभी तो कम ही स्टूडेंट रह गए सर, पहले ज्यादा थे शुरू में। वापस बुला लो उनको, बोलो कि वापस आ जाएं अगर आना चाहे तो, कोई ऐसे बात नहीं है कि पूछा जाएगा इसलिए वो छोड़ जाएं। शिवम कागरा। सर लगता है डर गए। नहीं नहीं, डर उन्हें बोलो ज्वाइन करने को उसमें। डर गए सर लगता है। शिवम, सर फर्स्ट किया है। फर्स्ट कर लिया? कौन सा पार्ट किया है, ए बी सी? क्या सर? ए पार्ट कर लिया कंप्लीट? यस सर। ठीक है, वैसे ही आया जैसे शिवम और सॉरी, जैसे संचित और रोहन ने दिखाया है, वही है? यस सर, वही जो सेम ग्राफ है ना, उसको तो 2 यूनिट्स पीछे शिफ्ट कर दिया। ठीक। सर इसमें तो मेनली बस वैल्यूज पुट करके वही करना है, एक्स एक्सिस चेंज करना है ना मेनली तो। हाँ, वही वही चेंज करना है एक बार। हाँ। थर्ड पार्ट का है, सेकंड पार्ट का। यस, ये रहा। सो इसमें ना एक तो वैल्यू करके भी कर सकते हैं हम लोग, बट वैल्यू करके अगर करेंगे जैसे रोहन ने सेकंड पार्ट के लिए किया है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अभी तक हमने ये तो सीख लिया है कि जो बेसिक चीजें हैं,
शिफ्टिंग में कि अगर हम टी डोमेन में, टाइम डोमेन में कुछ पॉजिटिव चीज ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये रहेगा कि वो सिग्नल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, इट विल बी नोन एज एडवांस वर्जन। तो ये हमें क्लियर है। तो हमें ये सिग्नल दे रखा हुआ है एक्स टी -2 से 3 के बीच में। एक्स टी +2 के लिए जैसे ऐड किया है तो सीधा 2 यूनिट्स हमने उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि कोई पॉजिटिव सिग्नल या पॉजिटिव वैल्यू अगर हम ऐड कर रहे हैं टाइम डोमेन में, इट मीन्स वी आर एडवांसिंग द सिग्नल टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो ये 2 यूनिट से एडवांस हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर है, टाइम टाइम पैरामीटर है, उसको हमने उसमें 2 यूनिट्स जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ ऐड कर देने हैं। तो -2 में फिर -2 ऐड होगा, -4 चला जाएगा ये। ऐसा नहीं कि +2 ऐड कर दें, +2 ऐड करेंगे तो फिर तो ये 0 पे आ जाएगा, वो डिले हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, हमने लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है और 2 यूनिट से शिफ्ट करना है। तो -2 विल बी -4, -1 विल बी -3, 0 will be -2 and so on, ऐसे करते 3 will be shifted towards 1 यूनिट। और ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कर रहे हैं। इट मीन्स जो वाई एक्सिस के पैरामीटर है वो इंटैक्ट रहेंगे, उसमें कोई भी एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होगा। तो जैसे पहले -1 और -2 और -1 के बीच में जो है वो 1 स्लोप का चेंज हो रहा था, 0 to 1, राइट। ऐसे इसमें भी स्लोप का चेंज होगा 0 to 1। आफ्टर दैट देर इज नो चेंज इन द स्लोप, इट रिमेन एट अ कांस्टेंट लेवल। 0 स्लोप रहेगी इसकी, 1 dB, 1 इज विल बी द मैग्नीट्यूड। तो इसमें 1 रह रहा है जैसे पहले हो रखा था, ठीक है। पहले -2 से -1 के बीच में था, अब यही चीज -4 और -3 के बीच में है। पहले -1 और 0 के बीच में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड था, अब -3 और -2 के बीच में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो उसके बाद सिग्नल जो है वो 0 पे -2 वैल्यू भी दिखा रहा है। मींस इसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं कि 0 पे आपका 1 भी है, -2 भी है। सो इट इज ए काइंड ऑफ अ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई आपकी एक तरह से, ठीक है ना। कंटिन्यूटी तो ब्रेक ही होगी, क्योंकि सिग्नल का दो वैल्यू हो ही नहीं सकता, +1 -2। तो इसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं कि सिग्नल का जो कंटिन्यूस नेचर था वो ब्रेक हो गया यहाँ पे। और इस वजह से इसकी दो वैल्यूज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। एट t इज इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू 1, और एट t इज इक्वल टू 0 इट हैज आल्सो ए वैल्यू इक्वल टू -2। तो इसको ज्यादातर हम ब्रोकन लाइन से ज्वाइन करते हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पे सिग्नल का कुछ इस विसिनिटी में थोड़ी एम्बिगुटी है। सिग्नल का मैग्नीट्यूड 1 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकन लाइन से नहीं शो कर सकते थे क्योंकि ये तो वाई एक्सिस थी, ठीक है। आगे चल के आप यहाँ पे जैसे इसको शिफ्ट किया है तो यहाँ पे हम ब्रोकन लाइन से शो कर सकते हैं। दैट इज here we have some kind of ambiguity or discontinuity around the magnitude of the or amplitude of the signal. So उसके बाद -2 से लेके 1 के बीच में constant magnitude रह रहा है which is equal to -2. So shape of the signal has not get affected, only we have shifted the signal towards left hand side by 2 यूनिट। तो ये सभी ने कर लिया, आप सबका ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, तो जैसे रोहन ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया हुआ है, बट उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट किए हैं। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके भी सही मेथड है, बट अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते देखते रहेंगे तो आगे चल के न्यूमेरिकल जो है वो काफी लेंथी होते हैं, और उसमें ये मान लो 7 और 8 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप में भी जहाँ 7 और 8 में से एक स्टेप ये भी होगा। अगर हम एक ही स्टेप, उनमें से 7-8 स्टेप्स हैं और उनमें से एक स्टेप पे इतना ज्यादा प्रोसीजर करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा आप उस न्यूमेरिकल के लिए। तो ज्यादातर हम इसको स्टेट वेव वैसे ही कर लेते हैं जैसे शिफ्टिंग किया था। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, और बिना वैल्यू सब्सटीट्यूट किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो एज टोल्ड अर्लियर की शिफ्टिंग को पहले प्रायोरिटी देते हैं। वी हैव टू फाइंड x माइनस ट्वाइस ऑफ t+2, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो t+2 तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब हमने स्केलिंग और इन्वर्जन, इनमें से कोई एक चीज पहले लगानी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने पहले स्केलिंग लगाई हुई है, अब इन्वर्जन भी लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। पहले स्केलिंग हमने लगाई है इसमें। तो स्केलिंग मीन्स इसको एक t को एक वैल्यू से सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, where scalar has a value greater than 1. So we know that it comes under the compression, क्योंकि हमने ये थ्योरी में पहले डिस्कस कर लिया है कि if a is the scaling factor and if small a scaling factor is greater than 1 then it means compression. तो compression means ये जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है, जहाँ जो इनिशियल सिग्नल था xt+2, इस सिग्नल को कंप्रेस करना है बाय 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट से कंप्रेस करना मतलब इसको इसमें जो जो भी अभी जो चीज हो रही है उसको कुछ रैपिड रेट पे करना। अगर पहले ये जो है -4 से 1 के बीच में 5 यूनिट्स ले रहा था, तो
तो अब इसको सिर्फ 2.5 यूनिट्स लेने हैं और सेम बिहेवियर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, पहले इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें जो है सिग्नल में डिपेक्ट होनी चाहिए विद इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। सो हम क्या करेंगे, ये 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्केलिंग यूनिट 2 है और कंप्रेशन है, तो इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। अगर एक्सपेंशन होती तो मल्टीप्लाई कर देते, जैसे पार्ट सी में है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 -2 हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 2 -1.5 हो जाएगा ये पर्टिकुलर पॉइंट, और उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय -2 विल बी इक्वल टू -1। सो ऐसे करते 1 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 0.5। सो द कंप्लीट सिग्नल इज नाउ taking place between 2.5 units only. Earlier it was within 5 units. ठीक है, तो इसको कंप्रेस कर दिया, तो ये कंप्रेस करके हमारे पास सिग्नल ये आ गया। तो इसमें डाउट है किसी को? फिर एक बार रिपीट करना है कि पहले t+2 करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना पूरे को, है ना? हाँ, जैसे पार्ट बी में पूछा गया था कि फाइंड x माइनस ट्वाइस ऑफ t+2। यस सर। ठीक है, ये पूछा हुआ है, तो x हमें दे रखा हुआ है, तो इसमें अगर आप देखो तो क्या क्या चीजें इन्होंने फाइंड आउट करने को बोला है। कंबाइंड ऑपरेशन कौन से हैं? एक तो ये नेगेटिव साइन दिख रहा है टाइम के साथ, इट मींस ओरिजिनल सिग्नल को इन्वर्ट किया हुआ है। ठीक यस। है, दूसरा स्केलिंग भी कर रखी हुई है। ठीक है, और एक शिफ्टिंग भी है। तो ठीक। ये तीनों चीजें कर रखी हुई मांगी हुई हैं हमसे। तो हमें जैसे पहले डिस्कस किया था थ्योरी में कि अगर कंबाइंड ऑपरेशन रहेगा और तीनों चीजें हमें आउटपुट में मांगी हुई हैं, तो सबसे पहले हम स्केलिंग को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो तीनों ऑपरेशन में स्केलिंग सबसे पहले प्रायोरिटी लेती है, उसके बाद इन्वर्जन और स्केलिंग में से कोई भी पहले प्रायोरिटी ले ले, वो इशू नहीं है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी गिवन टू द स्केलिंग, राइट। सेकंड एंड थर्ड कैन बी टेकन बाय इन्वर्जन और स्केलिंग, दोनों में से कोई भी ले सकता है सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, उसमें हमें इतना नहीं है, पर पहली प्रायोरिटी शुड बी शिफ्टिंग। सो हमने इस सिग्नल को फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको इग्नोर कर देना है, इन्वर्जन और स्केलिंग को, इनको नहीं कंसिडर करना, क्योंकि ये पहली प्रायोरिटी इनको नहीं जाती। पहली प्रायोरिटी जाती है शिफ्टिंग को, तो हम पहले शिफ्ट करेंगे, वी विल गेट xt+2। ठीक है, फ्रॉम xt, जो हमने अभी पहले पार्ट में कर ही लिया है एक तरह से। ठीक है, अगर पहला पार्ट नहीं दे रखा होता तो सबसे पहले हमें xt+2 फाइंड आउट करना पड़ता था। So once you have obtained xt+2, then out of these two operations, scaling and inversion, you can do anything as a on the basis of priority, right? दोनों में से किसी को भी हायर प्रायोरिटी दे सकते हो, स्केलिंग को भी दे सकते हो और इन्वर्जन को भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, उससे आंसर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बट उससे पहले आप शिफ्टिंग कर चुके होने चाहिए। अगर आप शिफ्टिंग बाद में करते हो और स्केलिंग और इन्वर्जन को प्रायोरिटी पहले दे देते हो, ठीक है, तो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। ये आप मैथमेटिकली भी करके देख सकते हो, क्योंकि हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिकली नहीं सॉल्व कर रहे कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो अगर आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर आपको लगे कि ये वेरीफाई करना है, तो इसमें वैल्यू जैसे रोहन ने सब्स्टिट्यूट की हुई हैं, वैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टी की 0 ले ली, टी की 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, इस तरह से ग्राफ बना लो, वैल्यूज आ जाएंगी, ग्राफ बना लो, और उसको फिर आप चेक करो कि अगर आप पहली प्रायोरिटी इन्वर्जन को देते हो, फिर स्केलिंग देते हो और थर्ड पे शिफ्टिंग देते हो, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आप पहली प्रायोरिटी स्केलिंग देते हो, दूसरी शिफ्टिंग देते हो, तीसरी इन्वर्जन देते हो, तब भी आंसर मैच नहीं करेगा। सिर्फ आंसर तभी मैच करेगा जब आप पहले नंबर पे शिफ्टिंग करोगे और उसके बाद दोनों बाकी बची चीजों में से किसी को भी पहले कर सकते हो। ठीक है, तो ही आपका जो है वो मैथमेटिकली आंसर जो है वो मैच करेगा, जो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ग्राफ बनाया होगा। ठीक है, तो शिफ्टिंग हैज टू बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी, देन आफ्टर शिफ्टिंग स्केलिंग और इन्वर्जन, इन दोनों में से पहले कोई भी आप लगा सकते हो। तो वही इसमें की हुई है कि इसमें जो है वो यही चीज पहले किया हुआ है, पहले हमने शिफ्टिंग की, उसके बाद स्केलिंग किया है। ठीक है, स्केलिंग मीन्स एज द स्केलिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स कंप्रेशन विल बी देयर, राइट। सो हमने कंप्रेस किया है और उसके बाद जो है उसको इन्वर्ट कर दिया है। इन्वर्ट मीन्स मिरर इमेज, जो पहले इस तरफ पॉजिटिव हाफ में था वो नेगेटिव हाफ में चला जाएगा, जो नेगेटिव हाफ में सिग्नल था वो पॉजिटिव हाफ में चला जाएगा। ठीक है, इन दिस वे यू कैन गेट x माइनस ट्वाइस ऑफ t+2। ठीक है, जो पहले +0.5 था वो इधर आ गया -0.5 हो जाएगा,
जो -1 और -2 थे वो इधर आके 1 और 2 हो जाएंगे. So any question regarding the second part of the numerical problem? नो सर. यस संगीता, आपने पार्ट नंबर थर्ड पार्ट सी का सॉल्व करके देखा है इसका? एक्चुअली सर ट्राई किया था पर हो नहीं पाया. हाँ. अभी आप करके देखोगे पार्ट, इसमें समझ में आ गया जो अभी समझाया है, x माइनस ट्वाइस ऑफ टी प्लस टू कैसे फाइंड आउट करना है? यस सर. कोई डाउट है तो पूछ लो अभी. यस संगीता. नो डाउट सर. तो आप पार्ट सी करके देखो, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स क्योंकि हमने ये पार्ट ए और बी डिस्कस कर लिए हैं, सी आप अब अच्छे से कर सकते हो. और जब संगीता पार्ट सी सॉल्व करेगी तो उसमें सोल्यूशन डिस्कस हो ही जाएगा. तो आप लोग एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके देखो बाकी स्टूडेंट, संचित, संजीव और शिवम. ठीक है, आप ये एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आप इसको सॉल्व करके देखो. यस, इसमें जो अभी विजिबल है प्रॉब्लम 1, ए सिग्नल एक्स टी गिवन बिलो. ये वेवफॉर्म दे रखी है एक्स थ्राइस ऑफ टी, आपको फाइंड आउट करना है. तो ये आप कर लोगे, बिल्कुल ऐसा ही है जो अभी आपने किया है. तो इसको हम अभी छोड़ते हैं, आपको प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करके देखनी है. इसमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड एक्स एन डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3. एक्स एन का ये स्केच दे रखा हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड एक्स एन बाय 4 माइनस 3. ये आपने करके देखना है. तो बाकी स्टूडेंट संचित, संजीव और शिवम, आप लोग ये करके देखो डिस्क्रीट डोमेन में. ठीक है, इसमें भी वही चीजें हैं. इसमें आपके पास शिफ्टिंग है, स्केलिंग है, इन्वर्जन इसमें नहीं है. ठीक है, तो दो ऑपरेशन हैं, स्केलिंग एंड shifting. So shifting will get first priority, then we have to scale the signal. ठीक है, इसमें इन्वर्जन नहीं है. तो ये करके देखो. ठीक है शिवम, संचित और संजीव, आप तीनों ये करके देखो. ठीक है, इसको सॉल्व करो. संगीता, आप जो नोट कर लिया था आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, या वापस स्लाइड पे जाऊं उस पे? नो सर, नोट कर लिया. नोट कर लिया ना? तो वो पार्ट क्या कहते हैं, सी आप फाइंड आउट करके देखो. ये वेव ग्राफ था. ठीक है, एक बार फिर देख लो, -2 से स्टार्ट होता है और इस तरह से उसमें वेरिएशन है. फिर उसके बाद ये वेरिएशन है पॉजिटिव हाफ में. आपको पार्ट सी फाइंड आउट करना है, दैट इज x4 माइनस t/2. ये करके देखो. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखो. एक्स यू हैव टू फाइंड x4 माइनस x ऑफ 4 माइनस t/2. ठीक है, तो पहले शिफ्टिंग करोगे. शिफ्टिंग में संगीता ये देखो, इसमें जो है और इसमें डिले सिग्नल है या एडवांस सिग्नल है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा या राइट साइड पे शिफ्ट होगा? सर राइट साइड में होगा. ये लेफ्ट पे ही होगा. ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास एक्सटी इनिशियल सिग्नल दे रखा है. ठीक है ना, एक्सटी दे रखा है, इसी से हम फाइंड आउट कर रहे हैं. एक्सटी में पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है +4. ठीक है, तो इसलिए शिफ्टिंग पहले करेंगे. तो इसलिए बोलते हैं पहले शिफ्टिंग करनी है. अगर -t देखोगे तो फिर लगेगा कि ये -t है या इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है. तो वो अभी नहीं देखना. आपने हमेशा इनिशियल सिग्नल या रेफरेंस सिग्नल जो है उसको देखना है, उसी को रेफर करना है जो शुरू में दे रखा हुआ है एक्स ऑफ टी, उससे ये निकालना है. तो इसमें ये जो स्केलिंग फैक्टर है इसका अपना मैग्नीट्यूड जो है लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जो प्रीफिक्स बोलते हैं वो पॉजिटिव है. इट मीन्स इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी एन एडवांस वर्जन. उसके बाद आप करने के बाद t+4 फाइंड आउट करने के बाद फिर आप इन्वर्जन या फिर शिफ्टिंग स्केलिंग दोनों लगा सकते हो. जो अभी डिस्कस किया था उसमें स्केलिंग फैक्टर जो है ग्रेटर देन 1 था, तो हमने कंप्रेस किया था. यहाँ लेसर देन 1 है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो गई. ठीक है, तो ये हिंट मैंने आपको दे दिए हैं, तो इसके बेसिस पे आप सॉल्व करके देखो. ठीक है, बाकी स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम नंबर 2 ये अभी हाईलाइट हो रखा है, इसको देखो और इसको सॉल्व करके देखो. ठीक है, और फिर से जो है वो क्या कहते हैं 10 to 15 मिनट्स ले लो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखो.
तो संगीता, आपने सॉल्व करके देखा पार्ट सी? यस सर। आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे एक बार? मैं, अगर आप कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा रहे हो तो फिर मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप नहीं करता। अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हो तो मैं स्क्रीन अपनी इधर से स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। यस सर, कैमरा ऑन करके दिखाऊंगी। ठीक ठीक है, दिखाइए, कॉपी दिखाइए। नहीं, जैसे पहले कैमरा था वो ठीक है, ओरिएंटेशन। हाँ, ये आप पार्ट सी कर बता रहे हो? यस सर। इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सिग्नल? लेफ्ट साइड पे पॉइंट कौन सा है? सर ये लेफ्ट साइड -6 है ये। -6? यस सर, फिर इसको -12 कर दिया से इंटरवल को 2 -12 कर दिया, हाँ वही पूछ रहा हूँ। -12 हो गया, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड कहाँ पे कंप्लीट हो रही है? सर -1 है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके -2 कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो थैंक यू संगीता, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। सो बाकी स्टूडेंट्स भी एक बार मैं यहाँ पे स्लाइड पे दिखा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। पार्ट सी ना, पार्ट सी, यस। सो इसमें जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड विद दिस एक्सटी सिग्नल, then shifting, it will shifting will get first priority. We have to find x t minus x4 minus t by 2, right? यही था, we have to find x4 minus t by 2। तो इसमें थोड़ा शफल करके लिखा हुआ है, t को पहले नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना? तो अगर t पहले लिखा होता तो बिल्कुल यही न्यूमेरिकल बन जाता। तो इस तरह से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चन पेपर में रहती हैं, ताकि स्टूडेंट थोड़ा पजल हो कि क्या चीज पूछी हुई है पहले, ठीक है? तो इसलिए इस तरह से किया हुआ है। अदरवाइज अगर आप इसको -t/2 + 4 लिखते तो बिल्कुल यही न्यूमेरिकल बन जाता और थोड़े डाउट जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से भी सिंपल करके लिखा जाता है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ऐसे न्यूमेरिकल देखोगे तो पता लग जाएगा कि वैसी ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो हम इसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। सो shifting will get first priority t plus 4, right? So t plus 4 means it will get shifted towards the left hand side by 4 unit now. -2 will move towards -6, and this 3 will move towards 3 minus 4, that is -1. So you will get this signal. No change in the shape of the signal, behavior of the signal remains same, right? It increases from 0 to 1 in 1 unit, then in next 1 unit it maintains its value at +1. Then after t is equal to -4, its magnitude suddenly fall to a point of -2, that is a magnitude level of amplitude level equal to -2, and then it maintains this particular point, and then again it's fall to a or you can say that it increases to 0, from -2 to 0, right? This is the -4 to -1 is the intercept between which its magnitude remain equal to -2. That is total 1, 2, 3 intercepts are there, right? So for 3 unit it maintain a magnitude of -2, for 1 unit it maintain a magnitude of +1, and for 1 unit it increases its slope from 0 to 1, right? So this is a complete behavior. जो पहले था बिल्कुल वैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, but it has shifted towards the left hand side by 4 unit. So once you have obtained xt plus 4, next is टाइम इन्वर्जन। जैसे वहां स्केलिंग पहले लगाया था ना, तो इसमें इन्वर्जन पहले लगा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना? अदरवाइज स्केलिंग भी आप पहले लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो इसमें हम इन्वर्जन लगा के देख रहे हैं कि इस पे जैसे में भी संगीता ने पहले जो है वो स्केलिंग किया है, फिर इन्वर्ट किया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो ये x माइनस टी प्लस 4 जो है, ये आपके पास हमने इसको इन्वर्ट किया है, राइट? सो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ अ सिग्नल, ठीक है? -1 to +1, -6 to +6। सो वही चेंज हुआ, बिल्कुल फ्लिप कर दिया उसको, और हमारे पास ये सिग्नल हमारे पास आ गया। सो दिस इज x माइनस टी प्लस 4 between 1 to +6। Now next is x minus t by 2 plus 4, right? So it means we have to do the
एक्सपेंशन बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका 1 आपका जो सिग्नल है वो 12 यूनिट तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 और 5 वाला जो इंटरसेप्ट था वो एक इंटरसेप्ट की जगह 2 इंटरसेप्ट बन जाएंगे 2 यूनिट्स में। तो ये इस तरह से बन गया। ठीक है, 10 और 12 के बीच में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 8 रहेगा। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 एंड दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये था, थोड़ी यहाँ गलती हो गई है, यहाँ से स्टार्ट होना था, यहाँ खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये पोर्शन नहीं आएगा 2 से लेके 8 के बीच में। ठीक है, तो संगीता ने जैसे पहले स्केलिंग की आई थिंक, उसके बाद उसका इन्वर्जन का स्टेप रहता है। तो इन्वर्जन के बाद आपके पास ये सिग्नल आ जाएगा विच एग्जिस्ट बिटवीन 2 to 12। राइट, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। असेंबल कर लो पापा इसको। पापा मैं टेलीस्कोप को एक बार असेंबल कर लूं। हाँ जी, कोई डाउट हो किसी को? संगीता, जो आपने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही है, बस जो थर्ड ऑपरेशन था इन्वर्जन इसमें लगाया हुआ है। यस सर, एक्चुअली सर मैंने उसका इन्वर्जन नहीं किया। हाँ, तो इन्वर्जन आपका तो सेम सोल्यूशन है। अगर आप शिफ्टिंग को पहले प्रायोरिटी देते हो, स्केलिंग पहले कर लो या इन्वर्जन पहले कर लो, तो ये वेरीफाई भी हो गया एक तरह से, तो सेम आंसर आता है। बट अगर शिफ्टिंग को पहले प्रायोरिटी नहीं दोगे, अगर शिफ्टिंग पूछी हुई है उसमें और उसमें स्केलिंग या इन्वर्जन को पहली प्रायोरिटी दे दोगे, तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो शिफ्टिंग को पहले प्रायोरिटी देनी है। वो आप जैसे बोला अभी ग्राफिकली किया है, आप मैथमेटिकली करके भी देख सकते हो। तो उसके बाद उसका वेव फॉर्म बनाओ, फिर उसके बाद आप पहले शिफ्टिंग को छोड़ के कुछ और करके देखो, आपका वेव फॉर्म वैसा नहीं आएगा जैसा आप मैथमेटिकली आपका आया है। सो रोहन, शिवम, संचित, यस क्लियर सर। है? ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हमारा एक रह गया था, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। संचित कर लिया आपने? यस सर, कर लिया। हाँ, तो स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे एक बार कैसे? यस सर। सर वैसे तो जो ए पार्ट है उसमें लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो गया है -9 से लेके -3 तक। कौन सा क्या ये कह रहा है? ए पार्ट से, ए पार्ट। प्रॉब्लम नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं, हो गए दोनों वैसे तो। प्रॉब्लम 2 की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रीट वाली। सर उसमें है -5/4 से लेके -5/4 से लेके 7/4 तक है। नहीं, ऐसा नहीं आएगा, वो तो डिवाइडेड बाय 4 एक्सपैंड होना है उसने, कंप्रेस नहीं होना। अच्छा सर, तुम अगर देखता हूँ। 4 एन से मल्टीप्लाई होता ना तो यस सर। आपका में भी ठीक होता कि तब भी उसमें गलती है। पर अभी बोल सकते हैं कि अगर उस गलती को ना देखें तो बोल सकते हैं कि ऐसे ही करना है, पर इसमें डिवाइडेड बाय है। ठीक है, जैसे ठीक यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो डिस्कस किया है इसमें t/2 था, तो है। एक्सपैंड हुआ है, 2 से यस सर। मल्टीप्लाई किया है। और सभी टाइम यूनिट जो है 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, जो इनिशियल पॉइंट था, जो एंडिंग पॉइंट था 6, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 12 तक लेकर गए हैं। तो ऐसे ही यस सारे इंटरमीडिएटरी पॉइंट भी एक्सपैंड हुए हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो अगर स्केलिंग फैक्टर जो है 1 से नीचे चला जाए तो हम उसको एक्सपैंड करते हैं, कंप्रेस नहीं करते। ओके सर। ठीक है, और शिवम, यस सर। आपने यस किया? यस तो स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे कैसे किया? यस तो दिख रहा है सर। अभी नहीं स्टार्ट हुआ दिखना। ये लेफ्ट साइड पे पहला पॉइंट कहाँ पर है? ओरिजिन से राइट साइड पे, सॉरी, ओरिजिन से राइट साइड पे पॉइंट कहाँ आ रहा है? सर ये क्या वैल्यू है इसकी? सर -8 -8। और उसके बाद अगली वैल्यू कौन सी है? सर -4 और फिर 0 है, फिर 0 से इधर पॉजिटिव वैल्यू। सर 4। ठीक किया आपने। ठीक है, रोहन, जी आपका भी ऐसा ही है? यस सर।
तो एक बार जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं स्क्रीन उसका सोल्यूशन जो है वो शेयर करता हूँ अभी आपके साथ, तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। और संचित को भी थोड़ा बहुत इसमें जो मिस्टेक आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो क्लियर हो जाएगी। क्यों हम एक तो क्लियर हो गया कि एक्सपैंड करना है हमने, कंप्रेस नहीं करना। और उसमें डिवाइडेड बाय 4 का क्या इशू रह जाता है अगर आप डिवाइड कर देते हो। तो ये इसका सॉल्यूशन तो ये है, हमें एक्स एन डिवाइडेड बाय 4 -3 यही फाइंड आउट करना है ना। तो पहले हमने एक्स एन -3 फाइंड आउट किया है, ठीक है। यही हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। एक्स एन इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड एक्स एन बाय 4 -3। तो हम इसमें पहले शिफ्टिंग को प्रायोरिटी देंगे। वी विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एन -3, ठीक है। तो एक्स एन -3 पहले फाइंड आउट करना है। तो एक्स एन -3 मैंने द सिग्नल विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड बाय 3 यूनिट। तो हमने वो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हो, जो अगर आप इनिशियल रेफरेंस सिग्नल से कंपेयर करो, it start from -8 and end at 4, right? Now we have a signal xn -3 which is starting from -5. तो -8 से -5 3 यूनिट राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है। सभी सैंपल जो हैं, जितने भी इसमें इंडिविजुअल सैंपल हैं, इनको सैंपल्स बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सैंपल्स ऑफ द सिग्नल, एलिमेंट्स भी बोला जाता है, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। तो discrete elements of the signals have been shifted towards the right hand side. Each and every element of the given signal has been shifted towards the right hand side by 3 units, ठीक है। तो इस तरह से उसको शिफ्ट कर दिया है। एंड वी हैव ऑब्टेन्ड xn -3। सो इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ xn -3 कैसे फाइंड आउट किया है। शिवम आप म्यूट कर सकते हो अपने आप को। ओके, थैंक यू। सो ये हमारे पास xn -3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड xn डिवाइडेड बाय 4 -3, स्टेप नंबर 2, राइट। कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो xn बाय 4 -3 फाइंड आउट करने के लिए जैसे शिवम ने स्क्रीन शेयर किया था, तो इसमें क्या रहता है कि जैसे संचित आप भी देखो, इसमें n डिवाइडेड बाय 4 है। एक तो ये क्लियर है कि ये कंप्रेशन नहीं, एक्सपेंशन है। जो ये गिवन सिग्नल है ये एक्सपैंड हो जाएगा काफी ज्यादा, ठीक है। तो अब एक्सपैंड कैसे करते हैं डिस्क्रीट डोमेन में। डिस्क्रीट डोमेन में एक्सपेंशन और स्केलिंग थोड़ा अलग रहती है। अब हमें 4 टाइम्स एक्सपैंड करना है सिग्नल को, मीन स्लो डाउन करना है। जो चीज पहले -5 और 7 के बीच में एग्जिस्ट कर रही थी, अब काफी ज्यादा वैल्यूज में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। उसका टाइम पीरियड बड़ा हो जाएगा, एक तरह से जूम्ड वर्जन हो जाएगा या स्लो वर्जन हो जाएगा सिग्नल का, काफी ज्यादा एक्सपैंड वर्जन हो जाएगा। तो जूम तो नहीं बोल सकते, स्लो बोल सकते हैं कि स्लो हो जाएगा काफी ज्यादा आपका सिग्नल। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे स्केलिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं पहले। जैसे इसमें जो स्केलिंग फैक्टर है वो 4 है, ठीक है। तो इसमें स्केलिंग फैक्टर 4 है और हम सिग्नल को स्केल डाउन कर रहे हैं, अप नहीं कर रहे, ठीक है। तो स्केल डाउन कर रहे हैं बाय यूनिट ऑफ और बाय फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। तो बाय फैक्टर ऑफ 4 वी आर स्केलिंग डाउन द सिग्नल। अब क्या हो गया, जब से ये 4, सबसे पहले स्केलिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करो, इसमें 4 आ गया। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं जनरल टर्म्स में, ठीक है, कि कैपिटल एम इसका जनरल नोटेशन होता है स्केलिंग का। सो कैपिटल एम से जब हम स्केल डाउन कर रहे हैं, तो जब हम इसको स्केल डाउन कर रहे हैं 4 यूनिट से, तो यहाँ कैपिटल एम से स्केल डाउन कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग सैंपल्स के बीच में हमें कैपिटल एम, आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो, बुक में भी दे रखा हुआ है। वी हैव टू इंसर्ट कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 zeros between the existing samples, राइट। जो एग्जिस्टिंग सैंपल्स हैं या एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं डिस्क्रीट सिग्नल के, ठीक है, उसमें कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 zeros हैव टू बी इंसर्टेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग सैंपल्स, राइट। इस तरह से करना है। तो कैपिटल एम here is equal to 4, so capital M divided by 2 will be 4 divided by 2, that is 2, plus 1, that is 3. So we have to insert 3 zeros between the existing samples. So इसमें जैसे ओरिजिन पे पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा एलिमेंट 1 है, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ इस टाइम। सो 0 और 1 सैंपल के बीच में वी हैव टू इंसर्ट 3 डमी बिट्स, राइट। इसको डमी बिट्स भी बोलते हैं या बिट स्टफिंग भी बोलते हैं। वी हैव टू
इंट्रोड्यूस 3 डमी बिट्स विच हैव ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। 1 नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, 1 इंट्रोड्यूस कर देंगे तो सिग्नल का नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 वैल्यू ही हमेशा बिट स्टफिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वी विल इंट्रोड्यूस zeros इन द बिट स्टफिंग, राइट। सो ये 3 zeros हमने इंसर्ट कर दी बिटवीन द एग्जिस्टिंग सैंपल। सो नेक्स्ट samples are 1 and 1, right, these two samples. So between these two existing samples we will insert 3 zeros, 5 6 7 और next is 8, ठीक है। तो 8 पे ये 1 और 1 इनके बीच में 3 बिट्स स्टफ कर दी, ऐसे इधर भी 3 बिट्स जो है वो स्टफ हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको एक्सपैंड करते रहेंगे, ये काफी ज्यादा जाएगा, ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है कि ये एक्सपैंड होता जाएगा काफी। सैंपल शो करने की जरूरत नहीं, इसी से क्लियर हो जाता है कि आपने सोल्यूशन जो है वो ठीक कर रहे हो। ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को थोड़ा ये प्रॉब्लम हुई है, इसमें गलत हो गया है मेरे से। तो इसमें जो है मैंने 0 और 3 आइडेंटिफाई कर लिया, ये बीच वाला सैंपल मेरे से मिस हो गया, ठीक है। अदरवाइज 0 और 0 के बीच में ही, इन दोनों के जीरोस के बीच में ही जो है वो 3 जीरोस और आने थे, और यहाँ पे -4 पे मैग्नीट्यूड 0 आना था, ठीक है। फिर 0 और 3 के बीच में 3 बिट्स 0 आने थे, और ये 3 यहाँ पे ना होके यहाँ पे आना था, ठीक है। तो ये मेरे से थोड़ा जो है वो मिस्टेक हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेना। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जो xn डिवाइडेड बाय 4 - 3 है, जैसे संचित ने किया था डिवाइडेड बाय 4 करके, क्योंकि इसमें जो xn पैरामीटर है, x एक्सिस पे जो टाइम पैरामीटर है, इट कैन टेक ओनली इंटीजर वैल्यू, नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकती, इसीलिए हमें बिट स्टफ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि सपोज करो इसको हम xn बाय 4 - 3 को yn अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अनदर सिग्नल y ऑफ n, राइट। So y of n equal to xn by 4 - 3. So let us do it mathematically. So verification हमेशा mathematically आप कर सकते हो. So let us find y0 first. So y0 will be equal to x0 divided by 4, which is 0, x0 - 3. That is, it will be equal to y0 will be equal to x - 3. तो x - 3 इस ये नहीं देखना, ओरिजिनल सिग्नल रेफरेंस सिग्नल जो हमने लिया था, तो ये x - 3 क्या है, 0. So y0 will be equal to xn divided by 4 - 3 will be equal to, now the output of, or the resultant will be, this will move toward this side, it will be equal to 0, right. So ये हमारे पास आ जाएगा। अब next start होता है y1 will be equal to x equal to x bracket 1 divided by 4 - 3, which will be equal to minus क्या आएगा आपके पास 1 divided by 4 - 3, so 12 - 1 -11 by 4 आ जाएगा। अब -11 by 4 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट सैंपल डमी बिट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। वी विल बिट स्टफ दिस विद 0 बिट, तो हमने 0 बिट इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज y1 will be equal to 0, so y2 will be equal to x bracket 2 divided by 4 - 3, that is 2 divided by 4, that is 1 by 2 - 3, that is 5 by 4. अगेन 5 by 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ओरिजिनल सिग्नल में, xn में कहीं पर भी 5 by 4 तो होता ही नहीं है, क्योंकि नॉन इंटीजर वैल्यू परमिसिबल नहीं है, तो हमने उसके लिए एक नया बिट स्टफ कर दिया विद अ 0, ठीक है। देन y3 विल बी इक्वल टू x ऑफ 3 divided by 4 - 3, which is equal to -12 - 3, which is equal to आपके पास आ जाएगा 9 by 4. So 9 by 4 again kind of a non-integer value. So we will introduce one more 0 bit here, right? Then comes y4. Y4 will be equal to x4 divided by 4, which is 1 - 3, which is x - 2. Now x - 2 do exist in the original signal. X - 2 is equal to 1, right? So y2 will be equal to, y4 will be equal to 1. So in this way you can verify also कि ये आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तो जो बिट स्टफ कर रखे हैं वो इसीलिए कि जो नॉन इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं x की, वो y की फॉर्म में तो इंटीजर है, पर x के लिए वो नॉन इंटीजर है। सो उसको अकोमोडेट करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस सम डमी बिट्स which we have assigned a 0 value, right? और स्टेट वेव फॉर्मूला जैसे रहते हैं कि कैपिटल M इज द स्केलिंग फैक्टर, राइट, एंड इफ यू आर स्केलिंग डाउन, ये स्केलिंग डाउन पे लगेगा, ऐसा नहीं कि आप एक्सपेंशन पे कंप्रेशन पे लगा दो। कंप्रेशन में बिट स्टफ करने की जरूरत नहीं होती,
कंप्रेशन में कभी भी डमी बिट इंसर्ट करने का जरूरत नहीं होता, वो सिग्नल कंप्रेस हो रखा होता है, वो आपको आउटपुट वैसे ही मिल जाएगा, उसमें करने की जरूरत नहीं। ये जो बिट स्टफिंग है वो सिर्फ एक्सपेंशन में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक्सपेंशन के केस में आइडेंटिफाई द स्केल डाउन फैक्टर, here the scale down factor is equal to 4, so 4 divided by 2 plus 1 will be inserted between the existing samples. So I hope आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Yes, any doubt regarding the solution for xn divided by 4 minus 3? Sanchit? ऐसे हो गया क्लियर सर। Sangeeta? नो डाउट सर। Shivam? यस सर क्लियर है। Rohan? यस सर क्लियर है। ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा मिस्टेक हो रखा हुआ है, वो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं ओरिजिन का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, ओरिजिन के जो नेगेटिव वैल्यू है वो x-4 को 3 मैग्नीट्यूड दे दिया है, असल में वो 0 आना था, ठीक है। बाकी राइट जो पॉजिटिव सैंपल्स हैं वो ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अगर आप इस सोल्यूशन को रेफर करोगे तो। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीक हम फर्दर जो आर्टिकल कवर होते जा रहा है क्लास में उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू, बाय।